Good morning, students. Assalamu alaikum. Hope you all are doing good. This is your English teacher, and I welcome you all in your Zoom online class summary lecture. Okay, so we have done our today's class. It's your English class today, and I am going to deliver the summary lecture what we have done in this class today. I'm going to summarize it in this lecture. Okay, so shall we start? Yes, of course. So we have done our unit number 1. This is your unit number 1. We all are welcome. Unit number 1 is all are welcome. What is in this unit? Okay, after looking at the picture, you can easily tell us that what is this unit is about. Actually, this unit is all about school and your class. Let's move forward. First day in class 3. Your lesson number 1 of the unit is first day in class 3. This is the book page. ठीक है, मेरे पास ये book available थी तो मैंने आपके लिए book page इसमें enter कर दिया है. ठीक है, इसमें मैंने book page insert कर दिया है. इंशाल्लाह very soon the books will be available in your region. ठीक है, आपके पास ये books available हो जाएंगी, so you can easily purchase the books. ठीक है, okay, let's read the unit. Hello everyone. Today is my first day in class 3. I am very happy. All my friends are also very happy. My name is Dash. What is your name? You are going to put it here. Whatever your name is, if your name is Ali, you are going to write it here, my name is Ali. If your name is Haris, you are going to put here, my name is Haris. Okay? I like to speak with my friends in English. My teachers help me to learn through games and activities. So how this boy learned the English? He learned English because his teacher helps him to learn or speak in English through different games and activities as like us. जिस तरह हम आपको पढ़ाते हैं different games के ज़रिए, different activities के ज़रिए हम आपको बोलना सिखाते हैं, इसी तरह से इसको भी इसकी टीचर्स ने सिखाया है. ठीक है, I know some poems and I love to sing these with my friends. ठीक है, what is he saying कि मुझे कुछ poems आती हैं. Okay, this word is poem. ठीक है, ये poem है, इसको poem नहीं कहते होते, ये poem है. ठीक है, क्या है ये वाला word? What is this word? This is poem. This is poem. ठीक है, poem है ये, इसको poem नहीं कहते. This is poem. Okay, so I know some poems and I love to sing these with my friends. I come to school every day to learn new things. मैं क्यों आता हूँ स्कूल रोज़ाना? To learn new and different things. जैसे आप स्कूल आते हैं, हम आपको बहुत सारी नई चीज़ें सिखाते हैं. ठीक है, It's fun to learn and play in school. There are boys and girls in my school. ठीक है, you don't have boys and you don't have girls in your school. ठीक है, because it's a single gender school. आपके पास सिर्फ क्या है, boys हैं, girls नहीं हैं. ठीक है, but maybe ये लड़का जिस स्कूल में पढ़ता होता है वहाँ पे boys भी थे. ठीक है, we listen to our teachers. There are few class rules for the classroom. My teacher has made a poster showing classroom rules so that we can also follow them. अब इसकी टीचर ने कुछ क्लासरूम रूल्स की पिक्चर्स पोस्टर अपने क्लास में लगाया हुआ है. What is that poster is about? Let's just see. Okay, so this is the poster that his teacher has pasted in his classroom. These are saying about some class rules. Number 1 rule is listen when others are talking. ठीक है, हमने क्या करना होता है, हमने सुनना होता है जब कोई और बोलता है. और क्लास में कौन बोलता है? डेफिनेटली टीचर ही बोलती है. So we should always listen to our teacher very carefully when she is talking. Rule number 2 is follow directions और इंस्ट्रक्शन यू कैन से. ठीक है, हमें क्या करना है, हमने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है. जो भी टीचर इंस्ट्रक्शन दे हमने उसको बहुत ही केयरफुली फॉलो करना होता है. कौन से इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, when teacher asks you, there are different instructions that a teacher gives you. For example, open your book, write your work neatly, draw margin line, draw ending line, write the date on your page. या फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन डिक्टेट करवाती हैं, ठीक है,
you should always follow his or her instructions. ठीक है. Number 3 is keep hands, feet and objects to yourself. Now what is this rule is about? आप अपनी टेबल पे, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ बैठते हैं. अच्छा, होता क्या है कि बाज़ औक़ात किसी की बुक्स, किसी की डायरी, किसी की पेंसिल दूसरे स्टूडेंट की टेबल पे होती है, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड हैबिट. आपने अपनी चीज़ें सिर्फ अपनी टेबल तक ही रखनी होती हैं, आपने दूसरे की टेबल पर नहीं जाना होता. ठीक है ना. और रूल नंबर 4 इज़ वर्क क्वाइटली एंड डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स. रूल नंबर 4 क्या कहता है कि आपने आराम से और बहुत ही क्वाइट तरीके से अपना काम करना है, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं दैट व्हेन दे फिनिश देयर ओन वर्क व्हाट दे डू, दे स्टार्ट डिस्टर्बिंग द अदर स्टूडेंट्स. ठीक है, वो दूसरों को तंग करना शुरू कर देते हैं. दैट्स नॉट अ गुड थिंग. रूल नंबर 5 इज़ शो रिस्पेक्ट फॉर स्कूल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी. ठीक है. अब बेंचेस, डेस्क, टेबल्स, व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स? ओके, ग्लास, वाटर, ठीक है, ये सब क्या है? दीज आर द स्कूल प्रॉपर्टी. ठीक है. आपने स्कूल की प्रॉपर्टी को भी रिस्पेक्ट करनी है. आपने फर्नीचर को हार्म नहीं करना, फर्नीचर को ख़राब नहीं करना. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी आदत होती है, वो क्या करते हैं, दे राइट ऑन द वॉल्स, दे राइट ऑन द टेबल, दे राइट ऑन द चेयर. दैट्स वेरी बैड थिंग. ठीक है. अब क्लास रूल्स में ये सबसे बड़ी बात होती है कि आपने ना वॉल पे लिखना भी नहीं होता, टेबल्स पे, बेंचेस पे भी नहीं लिखना होता. ठीक है. दैट्स नॉट अ गुड थिंग. आप हमेशा अपनी कॉपी पर ही लिखते हैं. सो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द स्कूल प्रॉपर्टी. देन रूल नंबर 6 इज़ वर्क एंड प्ले इन अ सेफ मैनर. ठीक है. हमने वर्क और प्ले करना होता है किस में? सेफ मैनर में. फॉर एग्जांपल, अगर आप खेल भी रहे हैं या अगर आप काम भी कर रहे हैं, आपने बहुत ही केयरफुली और बहुत ही सेफ तरीके से खेलना भी है, काम भी करना है. दैट्स वाई टीचर्स इन द ग्राउंड आर देयर. ठीक है. आप जब भी ब्रेक टाइमिंग होती है, आपके पास टीचर्स ग्राउंड में ही होती हैं. सो दे में alert you when you are jumping or running. ठीक है. they may warn you that do not run, do not jump, it can be harmful for you. ठीक है. So this were the class rules that his teacher has pasted in the class. What is next? The next para is saying a very important rule is to keep our classroom clean. ठीक है. सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये भी है कि हमने अपने क्लासरूम को क्लीन रखना है. द थिंग्स वी नीड आर अ ब्रश. ठीक है. अच्छा, ये रूल्स उनके लिए हैं जो अपने स्टूडेंट्स खुद क्लासरूम साफ़ करते हैं. ठीक है. लेकिन आपने भी अपने क्लासरूम को साफ़ किस तरह से रखना है कि आपने लिटर जो है वो फ्लोर पे नहीं फेंकना. यू शुड ऑलवेज पिक योर लिटर अप एंड यू शुड थ्रो इट इनटू द डस्टबिन. ठीक है. आपने डस्टबिन में अपना गन फेंकना होता है. दैट्स हाउ यू कैन क्लीन अप योर क्लासरूम. बट द थिंग्स दैट वी नीड टू क्लीन द क्लासरूम इज़ अ ब्रश, a mop and a water bucket. ठीक है. Then a duster. The duster is for the walls and for fans. ठीक है. ये हम इससे आपने देखा होगा अपनी मदर्स को भी, वो भी इससे वॉल्स को भी साफ़ करती हैं. जो वॉल पे जितनी डस्ट होती है, सो इट कैन ईज़िली रिमूव द डस्ट. और जो फैंस पे डस्ट होती है वो भी इससे रिमूव की जाती है. ठीक है. देन अ लिक्विड सोप. ठीक है. सो यू कुड बी, आपने देखा होगा आपकी मदर्स लिक्विड सोप पानी में डालती हैं और उससे वो क्या करती हैं, उसको क्लीन करती हैं. ठीक है. देन अ साइन बोर्ड शोइंग द फ्लोर इज़ वेट. ठीक है. अच्छा, ऐसे होता है ना अक्सर कि जब ज़मीन गीली होती है तो जब आप उस पर चलते हैं तो उस पर वो ऐसे निशान से बन जाते हैं या आप स्लिप भी हो सकते हैं. ठीक है. सो दैट्स वाई द बोर्ड इज़, द साइन बोर्ड इज़ हियर, सो इट कैन यू कैन नॉट एंड नॉट एनीवन कैन walk on the floor, so they may protect from slipping. ठीक है. Okay. This habit will help us to keep our school and home clean. यही habit होती है जो हमें अपने स्कूल एंड जो होम है उसको क्लीन रखने में हेल्प करते हैं. In this way we will always be happy and healthy. स्टे हैप्पी एंड फॉलो रूल्स. ठीक है. अपनी क्लीनलीनेस का ख्याल रख के हम क्या कर सकते हैं, हम अपने रूल्स को भी फॉलो करते हैं और हम हैप्पी भी रहते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर यूनिट नंबर 1.
Now what you are going to do is, this is gonna be your activity time. Your activity is name 2 rules of your classroom which you will follow. You have to think for these 2 rules जो आप follow कर सकते हैं. You can share it with your class teacher. So she may वो हमें भी आके बता सकती हैं कैसे कौन से रूल्स हैं जो आपके नहीं बताए हैं. ठीक है. So this was all for today my boys. Thank you so very much for patience hearing. ठीक है. And thank you so very much. Stay tuned. Allah Hafiz.